طویل بارش سے نقصان، اب نیا امتحان، کراچی والے شدید پریشان کہ الیکٹرک کے اکثر سب اسٹیشن زیر آب، شہر کے بیشتر علاقوں میں 2 روز سے بجلی بند، ڈیفنس آئی چندریگا روڈ، محمود آباد، جیسر کوٹ متاثر، شاہ فیصل، اعظم بستی اور دیگر علاقے بھی محروم، پینے کے پانی کی بھی شدید قلت۔ بارش ہوئے تیسرا روز، مسائل جوں کے توں، کراچی میں ہر طرف گندگی، کئی علاقوں میں پانی کی نکاسی بھی نہ ہو سکی، کیچڑ سے تعفن، شہریوں کو شدید مشکلات، بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ، کورنگی کراسنگ سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد، مشرف کالونی سے ملنے والی لاش بھی ہسپتال منتقل۔ شہر قائد کے پوش علاقے بھی مسائل کا گڑھ، کلفٹن کی سڑکیں اور انڈر پاس ابھی تک زیر آب، پی سی ایچ ایس سوسائٹی کی گلیوں میں بھی پانی ہی پانی، لائنز ایریا میں سیوریج ابل پڑے، بارش کے پانی میں بیٹی کا جہیز ڈوب گیا، بوڑھا باپ بے بسی کی تصویر۔ اتنا ٹیکس کنٹرولمنٹ کو ہم لوگ دیتے ہیں، کیا ہوا، کہاں جا رہا ہے وہ؟ ایک اتنا سا بم دے دیا اٹھا کے، اتنا پانی سارا بٹائی کا، سارا انڈسٹری لے کا، سارا پانی یہاں، اور آپ دیکھیں یہ تو، اور ہم یہ کل بننا مانتے تو آپ کو سارا ڈوبا ہوا نظر آتا۔ تو میری گزارش ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو کہ میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، گورنمنٹ نام کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ کراچی کے ضلع جنوبی سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، وزیر اعلیٰ سندھ متعلقہ اداروں پر برہم، رپورٹ طلب، کے ایم سی کا اربن ڈیزاسٹر ریسپانس یونٹ بھی متحرک نظر نہیں آیا، تمام گلیاں صاف چاہیے، مراد علی شاہ کی وارننگ۔ شہریوں کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے، سندھ حکومت سے مل کر کراچی کے مسائل حل کریں گے، نالوں کی مکمل صفائی اور تجاوزات بھی ختم کی جائیں گی، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی جائیں، مسائل کا تعین کریں، اکثر لوگ شہر کے بجائے ہاتھ کی صفائی کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیشہ اقتدار اور اختیارات کا رونا رویا گیا، چودھری شجاعت کی تنقید۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ملک سے تشریف لے گئے تھے اس بنیاد پر کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ الحمدللہ آج ان کی جان خطرے میں دکھائی نہیں دے رہی، آج ان کی صحت بحال دکھائی دے رہی ہے۔ جو شہباز شریف صاحب نے گارنٹی کی تھی، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے، اپنے قول اور فعل پر کاربند رہتے ہوئے، انہیں کسی حکومتی احکامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اخلاقاً خود واپس آ جانا چاہیے۔ کراچی میں سال ہر سال سے منصوبہ بندی کا فقدان سامنے آ گیا، مسائل کے حل کی بنیادی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، نواز شریف کی طبیعت بہتر، خود ہی واپس آ جائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 3 روز تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، بلوچستان میں بھی بادل کھل کر برسنے کا امکان، سیلابی صورتحال کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم، دریا اور نالے بپھر گئے، دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، چنیوٹ میں 25 آبادیاں ڈوب گئیں، اٹھ شریف میں بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب، نالہ 1 میں طغیانی، سنبڑیال کے نواح میں پانی ہی پانی۔ دریائے سندھ میں بھی گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، سکھر میں 20 دیہات متاثر، 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ۔ سوات کے علاقے شاہگرام اور تیرات میں سیلابی ریلے سے تباہی، بہہ جانے والوں کی تلاش جاری، ریسکیو ٹیموں نے مزید 3 لاشیں نکال لیں، ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی۔
शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, नजर न्याज का भी एहतमाम। कई मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट आमद। यौम आशूर की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा। सूबे भर में मजालिस और जुलूसों की जियो टैगिंग की गई है। उस्मान बुस्तार की गुफ्तगू। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब और दीगर की शिरकत। बुजुर्गान दीन की तालीमात अमन और भाईचारे को फरोग देती हैं। चौधरी सरवर की गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली का फैसला। वफाकी काबीना ने सीक्रेट बैलेट खत्म करने की मंजूरी दे दी। इंतखाबात सिंगल ट्रांसफरेबल ओपन वोट के जरिए होंगे। कास्ट किए गए वोट से रुकन असेंबली और उम्मीदवार का पता भी चल सकेगा। कोरोना की शिद्दत में वाज़ेह कमी। 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक मौत। 319 नए मरीज रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं शहर कराची की, जहां पर बारिश के दूसरे रोज भी पानी की निकासी नहीं हो सकी है। इस वक्त शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कई अहम शाहराहें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में बिजली नहीं है, शहरियों के पास पानी नहीं है। रिजेंट प्लाजा से जिना अस्पताल तक जाने वाला जो रास्ता है वो भी पानी से भरा हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं। सना फातिमा हमारे साथ मौजूद है। सना, कहिएगा, दूसरा रोज है, निकासी आपका भी कोई इंतजाम देखने में नहीं आ रहा है। कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनको फेस कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं? जी बिल्कुल आमना, जुमेरात के रोज मानसून का छठा स्पेल इस कदर जोर से बरसा था कि यहाँ पर जल थल एक हो गया था। पूरा शहर ज़ेरे आब आ गया था। अब आज तीसरा रोज है। जुमेरात के रोज जब बारिश हुई थी, आज तीसरा रोज होने के बावजूद बहुत सारे इलाके अब भी पानी से भरे हुए हैं। रीजेंट प्लाजा से जिना अस्पताल और NICVD आने वाले जो रास्ते हैं वो दोनों सड़क की दोनों अतराफ मुकम्मल तौर पे पानी से भरे हुए हैं। सीवरेज का सिस्टम तबाह हो गया है। रोड टूट फूट चुकी है। आप जानते हैं कि जब चारा फैसल से कोई अस्पताल आना चाहेगा तो किस कदर मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ेगा। मरीज एम्बुलेंसेज में आते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन ये सड़क टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से खड्डों का भी पता नहीं चलता और मरीजों को बहुत शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर शदीद बदबू का आलम है। सीवरेज का पानी सारा मिक्स हो चुका है। गटर के ढक्कन हटा दिए गए हैं इस कोशिश में कि शायद पानी की निकासी हो जाए, लेकिन गटर के ढक्कन हटाने से मजीद गंदगी और बदबू फैल गई है। रोड टूटे होने की वजह से भी और इस गंदगी और बदबू की वजह से मरीज जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका इलाज होने के बजाय ऐसा मालूम होता है कि वो ज़्यादा बीमार हो गए हैं। जो अटेंडेंट्स हैं मरीजों के वो बाहर फुटपाथों पे बैठे हुए हैं और फुटपाथों पे भी गटर के ढक्कन जो हटाए गए हैं उसकी वजह से चलना और बैठना दुश्वार है। हमारी जो लोगों से यहाँ पे बात हुई उनका यही कहना है कि बहुत मुश्किल से इन हालात में वो अपने मरीजों को यहाँ पर लेके आए, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे उनको अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है और बाहर बिल्कुल बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसके बायस ना सिर्फ मरीज उनके साथ आने वाले भी इंतहाई अजियत का शिकार नज़र आ रहे हैं। जी अच्छा सना, ये कहिएगा कि आपने मजमूई तौर पर मंजर खींचा इस रास्ते का, अस्पताल में मौजूद लोगों की परेशानी का। ये कहिए कि अस्पताल के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों की फुटेजेस भी सामने आई कि वहाँ भी घुटनों घुटनों पानी है। अस्पताल का मंजर बताइए, इसके अलावा ओवरऑल बताइए कि कहीं आपको इस दौरान शारा फैसल से कराची ब्यूरो से जिना अस्पताल आते हुए इंतज़ामिया मुतहर्रिक नज़र आई कि कहीं पानी निकालने की कोई कोशिश की जा रही हो गटर के ढक्कन हटाने के अलावा?
इंतजामिया मुझे पूरे रास्ते में कहीं भी नज़र नहीं आई। शाहराह फैसल की हालत भी मैं आपको ये बयान करूंगी कि बारिश के साथ आने वाला जो कचरा और मिट्टी था उसने शाहराह फैसल को 6 रोया सड़क से 2 रोया सड़क में तब्दील कर दिया। इस वक्त सिर्फ 2 रोज़ हैं जो शाहराह फैसल की चल रही हैं, बाकी के रोज़ में कचरा और मिट्टी भरी हुई है। उसकी वजह से पहले ही ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पानी, कचरा, सीवरेज का तो शहरियों के लिए अज़ियत जो है वो दुबाला हो जाती है। इसके अलावा अस्पताल के अंदर का जो आलम है वो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन आप जो भी अस्पताल जाएगा उसे इस सड़क से गुजर के, इस रास्ते से ही गुजर के जाना है। ये वो अस्पताल है जिसके बारे में सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा ब्रैग करती है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र से बात करती है और ये बताती है कि NICVD और जिन्ना अस्पताल सिंध के बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में जिनका शुमार होता है। लेकिन इस अस्पताल की इस वक्त अगर आप कंडीशन देख लें तो आपको सिंध हुकूमत से आप भी सवाल करेंगे, अवाम भी सवाल करी, हम भी सवाल करते हैं कि ये वो काबिल फ़ख्र अस्पताल है जिसके बाहर गटर उबल पड़े हैं, जिसके बाहर कचरा है, जिसके बाहर मक्खियां हैं, मच्छर हैं। क्या यहाँ मरीजों को इलाज के लिए लाया जाए या मजीद बीमार करने के लिए यहाँ पर लाया जाए? अच्छा सना, ये भी कहिएगा कि जैसे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मौक़िफ़ रखा गया था कि करंट लगने के वाक़यात क्योंकि होते तो उससे बचने के लिए बिजली को बंद किया गया है। जिस इलाके में आप मौजूद हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और बिलखुसूस ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, पूरे शहर की अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन आपको बयान करूं तो शहर का एक बड़ा हिस्सा अब भी ऐसा है कि जहां पे 48 घंटे से लाइट मौजूद नहीं है। कल कुछ इलाकों की बिजली बहाल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब भी ऐसे इलाकों से इत्तलात आ रही हैं जहां पर कई घंटे गुजरने के बावजूद, तीसरा रोज़ होने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हो पाई है। के इलेक्ट्रिक का के जो तर्जुमान है उनका यही कहना है कि उनके 50 से ज़ायद सब स्टेशन जो हैं वो अब भी ज़ेर-ए-आब हैं और क्योंकि वो सब स्टेशन ज़ेर-ए-आब होने के बिजली की मशीनरी है, आलात है, वो सब पानी में डूबे हुए हैं। इस वजह से उन्हें बिजली की फराहमी में, बिजली को बहाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी भी यही कहानी है कि अगर उनके साथ इंतज़ामिया ताउन करे कि उनके सब स्टेशंस में से पानी निकाला जाएगा तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे बिजली को बहाल कर सकते हैं, वरना इस सूरत हाल में अगर उन्होंने बिजली बहाल करने की कोशिश की तो बजाय शहरियों के लिए सहूलत होने के लिए उल्टा कोई नुकसान भी हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया सना आपका। कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब भी बरसाती पानी अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं इबादुल्लाह खान। कराची में बारिश रुके हुए घंटों गुजर चुके हैं, लेकिन पानी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर निकासी आब का सिस्टम ही मौजूद नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पर। एक तरफ मेरा सफारी पार्क है तो दूसरी जानिब ये आबादी है और यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से नीपा की तरफ आते हैं तो ये मेन पॉइंट है जो सफारी पार्क के बिल्कुल साथ ही यहाँ फ्लाई ओवर्स भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा है, यहाँ पर गड़ा मौजूद है जिसकी वजह से ये रक्षा फंस चुका है। इस वक्त पानी यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और इस तरह के वाक़यात भी होते हैं क्योंकि बारिश की वजह से ये रोड खस्ता हाल हो चुकी है, यहाँ बड़ा गड़ा पड़ चुका है। दूसरी गाड़ियाँ तो बचा के गुजर चुकी हैं, लेकिन ये एक रक्षा अभी यहाँ फंसा है और यहाँ इसका नुकसान कितना होता है ये तो रक्षा का मालिक ही बता सकता है। लेकिन इस तरह के वाक़यात बहुत सारे होते रहते हैं और ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है जो अभी ही जो है वो सिंध सरकार ने बनाई है। मेन करोड़ रुपए इस रोड के ऊपर खर्च हुए हैं और इसका हाल ये है कि यहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं बारिश होने के बाद और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। दीगर शहरों की भी अगर बात करें तो वहाँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बारिश का पानी जमा है, निकासी आब का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से बारिश का पानी उसके साथ गटर का पानी मिल गया है, नाले का पानी बाहर आ गया है, यहाँ पर भी बड़ी स्मेल आ रही है और यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो चुका है और इंतज़ामिया है कि हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.